I'm audible, ma'am. Hello. Yes, sir, you are audible. Yes, sir, you Yes. are audible. Yes, sir. Okay, okay, okay. Good afternoon, all, and assalamu alaikum. Uh, Today I will take session on COPO attainment of the NBA. Okay, basically it is coming under criteria 3. Okay, ma'am, can I on the presentation, right? Okay, okay. So basically, in NBA, the COPO attainment is very important. The whole focus is there on this thing only, because when we are teaching any courses, so what is the outcome? That is the whole idea behind the NBA. Okay. Now, outcome has to be measured in some kind of way. In NBA there is no specific way how to measure it, but it should be have developed different techniques by while calculating, because only percentage is not enough to get a result. As far as outcome is concerned, some kind of value should be reflected, how much is been attained or how much has to be attained. Okay, so there should be some kind of technique for getting that attainment. First of all, there should have some steps. So basically what I will do in this session, I will clear all the steps regarding how to attend it. But what I can say also, that it is not a specific one that you should follow the same. There can be have divergence also, or different techniques also. Okay, it can have different methods also for calculating. So basically the whole idea which has to be calculated after it, what we get the result, this has to be cleared. That is why I'm taking this session. Okay, so first of all, what I will say, I will take a subject, we can say course of my subject only. Okay, I take applied electronics in semester 3 of electronics and telecommunication department. Okay, so whenever we take some course, what we have to go through it over the content, because if somebody faculty is new one, so first of all overview should be there, what they have to teach and what they have to do in the practical. If a faculty is old one, so a senior one, he knows how to deal with the content and what is the content that must be there. So first of all, we should have clear idea about our syllabus thing. Like MSBT provides us the syllabus, right? So MSBT, when the MSBT is providing the syllabus, we must go through with this teaching scheme. Okay, because for attainment calculation, this teaching scheme table is very important, right? क्योंकि इन दिस टीचिंग स्कीम यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, वी गेट एन आइडिया कि व्हाट इज द वेटेज डिस्ट्रीब्यूशन, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, बिकॉज दिस टीचिंग स्कीम विल गिव अस द डायरेक्ट अटेनमेंट. तो आगे मैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अटेनमेंट के बारे में आपको एक्सप्लेन करूंगा, बट यहाँ पे पहले हम लोग टीचिंग स्कीम को बेटर नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार देख लेते हैं. व्हाट इज द टीचिंग स्कीम ऑफ MSBT? अब अगर if some institute is not coming under MSBT, they should have their own teaching scheme. They have prepared, they might have prepared it also. So यहाँ पे टीचिंग स्कीम में MSBT is clearly mentioning the two main thing, theory and practical. Okay, तो थियरी और प्रैक्टिकल एमएसबीटी खुद अलग करके यहाँ पे दे रहे हैं, राइट? और उसमें टीचिंग स्कीम में यहाँ पे जो मेरा सब्जेक्ट है, इट हैज 200 मार्क्स वेटेज. ओके, तो 200 मार्क का टोटल वेटेज है फॉर दैट कोर्स अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स, राइट? अब यहाँ पे 200 मार्क्स का जो वेटेज है वो डिवाइड कैसे हुआ है, हाउ इट इज डिवाइडेड? First of all, 100 marks they have divided for theory and 100 marks they have divided for practical. Correct? Now we can see in theory 100 marks, what they have given, they have given ESE, that is end semester examination. So in NBA terminology, that is nothing but term and examination has been there, right? Term and examination has been there. And for our MSBT, this term and examination is conducted by solely by MSBT only, right?
So ये जो theory का ESE marks है, that is totally taken by MSBT only. We don't have anything. We can't see how marks they have distributed of the student. So totally जो है वो पूरा का पूरा control जो है वो MSBT के हाथ में है, right? 70 marks. Now next 30 marks that PA is been there. तो PA जो जी आई स्कीम में यहाँ पे you know all the thing. I think so सारे जो है जो audiences है वो डिप्लोमा के ही है. So this PA is nothing but we can say the progressive assessment. We can say that is coming under teacher. Okay, in that unit test 1 is been there, unit test 2 is been there, and micro project is been there. This total marks is been totally has been controlled by internal teacher or whoever teaches that subject, right? So basically 70 marks is totally controlled by MSBT and 30 marks is totally have been controlled by the teacher with the help of various examination. Now in the practical slot, we can see that ESE, that is again end semester examination for practical is been there, which is of 50 marks. Now this end semester examination in MSBT is been, we can say by in some subject it is controlled by the internal faculty only, and in some subject it has been controlled by external faculty. Yes, that is provided by the MSBT. But one important thing about this thing is there, unlike theory, in that we do not get to know how much the marks has been distributed, right? We to only get the total score. जब theory का examination होता है तो theory में examination में directly we get the result. वहां पे हम लोगों को जो है कितने क्वेश्चन नंबर 1 के क्वेश्चन नंबर 1 के एफ में वी डोंट नो हाउ मेनी मार्क्स द स्टूडेंट हैज बीन स्कोर्ड. ये एक प्रॉब्लम है एमएसबीटी का, राइट? यहाँ पे ऐसा प्रॉब्लम नहीं है. इन दिस प्रैक्टिकल वी नो हाउ मच द स्टूडेंट हैज बीन स्कोर्ड फॉर पर्टिकुलर स्टेप्स, right? If we design a practical, we for an examination we keeps marks for result, we keep marks for conclusion, we keep marks for the conduction of the practical, how the student has been conducted the practical, then we keep marks for viva. So we all know the steps how to, or we can say we all know the marks distribution procedure, how to divide that marks, 50 marks, and we know the marks also, okay, for practical ESC. And for PA it is nothing but progressive assessment for manual, right? So for weekly we can say we assessed manual, and for that assessment also MSBT have provided the guidelines how to assess it. So basically whenever we go for a course for COPO attainment, so basically the whole this presentation idea is behind to get an COPO attainment, because the most important thing is that only in NBA we can say. Now first of all we must know this teaching scheme. तो यहाँ पे से मुझे पता चला कि 70 marks is totally gone by our MSBT, and rest 130 marks is control of that internal faculty, or somehow that internal faculty knows that how the marks has been distributed. Okay, so basically we got that idea from this teaching scheme. ये इतना हम लोग को पता चला कि 130 marks जो है वो टीचर के हाथ में है, right? और 70 मार्क्स जो है वो एमएसबीटी के हाथ में. वहां पे एमएसबीटी के हाथ में जो मार्क्स है वहां पे वी कांट डिस्ट्रीब्यूट इन सीओस. ओके, वहां पे हम लोग सीओस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते. वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट इक्वली. देन ये हम लोग को इतना पता चला यहाँ पे से, राइट? तो स्टार्टिंग वे में. नाउ व्हाट नेक्स्ट इज बीन देयर? नेक्स्ट इज बीन द कोर्स आउटकम. So we can say we are very lucky that MSBT is providing us the course outcome with the senior most lecturer. They are sitting and they are designing the course outcome. We can assume that that is the best one. And we, as we can say, we can manipulate, but it's better not to, because NBA जब आएंगे, okay, NBA will come, the lecturer, the professors will come, and they will see the MSBT has given the course outcome, right? MSBT ने course outcome दिया है, and then we are manipulating that course outcome. We are adding or subtracting the course outcome. That is not justified, because जब एक authority ने course outcome दिया है, okay, so it is not possible that from our level we are having 5 hours or 5 years experience or 10 years experience and we are manipulating it. So basically course outcome is given by MSBT. So for that also we can't do anything.
unless and until we have a, we can say, strong reason to manipulate it. So I think so better not to manipulate the course outcome which is given by our MSBT only. Okay, so here we can say five, uh, I think course outcome is provided by MSBT. So basically four or five or six are the course outcome limitation has been there. The subject, so the content which you have. Okay, based on that only. Uh, this course outcome need a strong brainstorming session. We can say brainstorming ideas and different higher experience faculty level, so that we can design it. तो यहाँ पे मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा बिकॉज अवर मेन आइडिया इज टू गेट द वैल्यूज. तो यहाँ पे कोर्स आउटकम कैसे डिज़ाइन करना है, ओके, कैसे लिखना है, दैट ऑल यू नो दैट, राइट. तो यहाँ पे 5 कोर्स आउटकम इज बिन देयर. नाउ व्हाट नेक्स्ट थिंग द MSBT is providing, MSBT is providing this chart also. Okay, this chart is basically giving the idea of course outcome linking with practicals also. So for practical we have an idea. अगर practical में जो हमारे पास है, ओके, जो भी जितने भी प्रैक्टिकल्स वी आर कंडक्टिंग इट, तो यहाँ पे हम लोग को डायरेक्टली जो प्रैक्टिकल्स जो भी है, ओके, तो कौन सा प्रैक्टिकल कौन से सीओ के साथ मैप होगा वो MSBT ने दिया हुआ है, क्लियर कट. MSBT ने बताया हुआ है कि कौन सा जो प्रैक्टिकल है वो कौन से सीओ के साथ मैप हो रहा है, राइट. एंड सेकेंड MSBT व्हाट दे आर टेलिंग, कौन सा थियोरी का जो टॉपिक है वो कौन से सीओ के साथ मैप हुआ है. तो वी कैन से दिस ग्राफ इज नॉट सीओपीओ मैपिंग. ये सीओपीओ मैपिंग नहीं है. ये जो MSBT प्रोवाइड कर रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो प्रैक्टिकल है वो कौन से कोर्स के साथ मैप है, कौन से कोर्स के साथ, कौन सा प्रैक्टिकल कौन से कोर्स के साथ, राइट. एंड सेकेंडली कौन सा थियरी का जो टॉपिक है वो किस सीओ के साथ मैप है, दे आर टेलिंग. सो बाय द वे लुकिंग एट द सीओ वी कैन अंडरस्टैंड कि कौन सा टॉपिक मैप है, बट एक बार गो थ्रू करना चाहिए. हो सकता है हमारी अंडरस्टैंडिंग में कुछ मिस हो जाए. तो यहाँ पे से डायरेक्टली पता चलेगा कि प्रैक्टिकल नंबर 11 इज मैप टू सीओ नंबर 2. यहाँ पे जैसे पता चल रहा है, यू कैन सी दैट दिस इज प्रैक्टिकल नंबर 11, इट इज मैप टू सीओ नंबर 2. टॉपिक जो दिया हुआ है, टॉपिक आउटकम का भी दिया हुआ है, विच टॉपिक इज मैप विद द कोर्स आउटकम. तो अगेन यहाँ से चार्ट पे क्या पता चल रहा है, वेन एवर वी टीच दैट टॉपिक दैट इज गिवन टू दैट सीओ, यहाँ से हम लोग को ये पता चलेगा. यहाँ से हम लोग को सीओपीओ मैपिंग नहीं पता चलेगा, राइट. ओके, तो वी कैन से दैट के पीपीटी पे आते हैं. वी कैन से दैट के एक हम लोगों ने टीचिंग स्कीम को पूरा अच्छी तरीके से देख लिया. वेन एवर वी आर गोइंग विद आवर सब्जेक्ट और कोर्स, तो सबसे पहला हम लोग हमारा काम होना चाहिए, वी गो थ्रू दिस टीचिंग स्कीम, बिकॉज यहाँ से सारे आइडियाज आएंगे हाउ टू मैप इट. ओके, नाउ नेक्स्ट व्हेन वी हैव थॉट अबाउट टीचिंग स्कीम, वहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, मार्क्स के बारे में सारी चीजें देख लिया, राइट. 100 मार्क्स थियरी, 100 मार्क्स प्रैक्टिकल जो अलोकेटेड है MSBT में. फिर मैंने क्या बताया, इन दैट 100 मार्क्स 130 मार्क्स हैज बीन कंट्रोल्ड बाय वी कैन से टीचर, right, and 70 marks has been controlled by MSBT, right. So in NBA they don't have this end semester examination and we can say progressive assessment. This kind of term has been not there. Okay, so in NBA what has been there, term and examination has been there, and second one is nothing but CIA. Okay, continuous, we can say internal assessment. Okay, continuous internal assessment has been there. So as the word suggests, internal assessment, and it has to be continuous, right. So what we can think is that that PA is also a assessment only. Okay, and on the continual measure we measure that on micro project also, right, for that unit test also, right. And we can say for practical also PA has been there, right. So what we can do is we can separate this जो weightage has been given by MSBT in CI and TEE. Okay, CI continuous internal assessment and TE is term and examination, right. So what I have done for the NBA visit that the marks which is governed by the MSBT जो control में था MSBT के, that I have given to TEE term and examination. तो और CI में मैंने कौन से मार्क्स जो अलोकेट किया था, दैट इज टोटली अंडर कंट्रोल ऑफ दैट फैकल्टी, और वी कैन से एक्सटर्नल
एग्जामिनर इज ऑल्सो कमिंग, राइट? अब यहाँ पे कुछ लोगों को डाउट आ सकता है कि इफ यू आर टेलिंग इट इज ए कंटिन्यूस असेसमेंट, ओके, कंटिन्यूअल इंटरनल असेसमेंट, तो उसमें आप जो है प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन जो हो रही है ईएसई, हाउ यू आर टेकिंग दैट मार्क्स इन दिस, कुछ लोगों को डाउट वहाँ पे हो सकता है, राइट? इवन आई हैड ए डाउट ऑन दैट ऑल्सो। तो वहाँ पे अगर मैं टी डबल ई में रखता हूँ, वहाँ पे टी डबल ई में वहाँ पे अलोकेट करता हूँ, तो वहाँ पे टी डबल ई में अलोकेट करने में क्या होगा, कैलकुलेशन थोड़ा सा जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, राइट? वी कैन डू डेट बिकॉज अल्टीमेटली आप मार्क्स जो है वो सी आई ए में रखो या टी डबल ई में रखो, एट द एंड जो है वो रिजल्ट तो सेम ही आएगा। रिजल्ट जो आने वाला है, अटेंडमेंट जो आने वाला है, दैट विल बी द सेम। वहाँ पे कोई अटेंडमेंट में अफेक्ट नहीं होने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट द रीजन वी कैन से, हाँ, अटेंडमेंट में चेंजेस क्या हो सकता है, बेस्ट चेंजेस मैं आपको बताऊँ, अगर हम लोग जो है PSE, मैं आपको यहाँ पे बताऊँ एक चीज जो आइडियाज ले सकते हैं। जैसे अगर ESE जो प्रैक्टिकल है ना, प्रैक्टिकल जैसे मैंने यहाँ पे बताया था आपको ये चीज, ये देखो यहाँ पे ये चीज, यहाँ पे मैंने बताया ESE प्रैक्टिकल के 50 मार्क्स है। तो मैं जब कॉलेज में प्रोसेस फॉलो हुआ था, व्हाट वी हैव डन इज के जो ESE के मार्क्स है वी हैव केप्ट इन CIA, ओके, CIA। अब CIA में रखा गया था क्योंकि ये थिंकिंग था कि क्योंकि ये इंटरनल गवर्न मार्क्स है, MSBT जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी देती है टीचर्स को मार्क्स कैसे अलोकेट करने जो है वो, तो वी हैव केप्ट इन CIA, बराबर है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि कुछ लोगों के दिमाग में ये आएगा कि we can keep these marks in TEE also because basically it is also a term and examination, right? It can be given for that also, वो हो सकता है, नो डाउट वहाँ पे भी जा सकता है। तो मैं वहाँ पे क्यों नहीं डाला गया था, मैंने क्यों नहीं डाला था, क्योंकि जो हम लोग पैटर्न फॉलो कर रहे थे फ्रॉम 2-3 years, व्हाट वी हैव सीन दैट अगर हम लोग TEE में डालते तो थोड़ा कैलकुलेशन जो है वो थोड़ा सा हायर लेवल, मतलब हार्ड लेवल पे चले जाता है, एक्सप्लेनेशन में डिफिकल्टीज जो है वो आ जाएगी, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। as we are engineers so we can explain it, no doubt we know that, but थोड़ा सा जो है वो इजी करने के लिए टॉप वे में। हाँ, अगर आप जो है एक एडवांटेज भी है, एक एडवांटेज क्या है कि इफ वी आर गिविंग दैट मार्क्स, दैट ESE प्रैक्टिकल मार्क्स, ओके, जो 50 मार्क का जो प्रैक्टिकल एग्जाम होता है लास्ट में, वो अगर हम लोग TEE में रखते हैं तो उससे क्या होगा पता है क्या, जब एग्जाम बोर्ड एग्जाम होती है तो बोर्ड एग्जाम में मार्क्स जो है पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के अच्छे नहीं आते। लेट्स से कोई बी फ्रैंक लाइक मैथ्स सब्जेक्ट इज बिन देयर, मैथमेटिक्स इज बिन देयर, या मैथमेटिक्स नहीं लेते क्योंकि मैथमेटिक्स में प्रैक्टिकल ही नहीं होता, तो कोई और एक सब्जेक्ट है जिसमें जो बोर्ड एग्जाम के मार्क्स होते हैं वो अच्छे नहीं आते, डाउन ग्रेड पे होते हैं बहुत ज्यादा डिफिकल्टी लेवल्स की वजह से। तो अगर प्रैक्टिकल वहां पे रखा TEE में तो क्या होगा, वो जो है वो एवरेज होगा, राइट? तो अगर वो एवरेज, अगर मतलब आ रहा है, एवरेज में आ रहा है, तो वहां पे जो है थोड़ा सा क्या हो जाएगा, बेटरमेंट हो जाएगा, लेवल जो अटेनमेंट जो है थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा, ये हो सकता है, ठीक है? सो वी कैन कीप दिस, प्रैक्टिकल एग्जाम का जो मार्क्स है वो TEE में आ सकता है, जस्टिफाई हो सकता है क्योंकि वो टर्म एंड एग्जामिनेशन है, करना चाहे तो। बट व्हाट वी हैव डन इन RNBA वी कैन से, क्योंकि हर जगह जो है, हर कॉलेज में जो कैलकुलेशन की मेथड्स है उसमें डिफरेंस हो सकता है, बिकॉज देयर इज नो फिक्स मेथड कि ऐसा ही कैलकुलेट करना है, ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही रिजल्ट लाना है। इट इज नॉट लाइक दैट। दे हैव गिवन द फ्लेक्सिबिलिटी, जो फॉर्मूला यूज करने में कैसे यूज करना है वो फ्लेक्सिबिलिटी दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो मैं, मेरा सब्जेक्ट है जैसे मैं बता रहा हूँ अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स, तो उसमें क्या हो रहा है, मैंने क्या किया है, 200 मार्क्स का था जिसमें से 130 मार्क्स दैट इज टोटली गवर्न बाय फैकल्टी, right? 70 marks is totally governed by that MSBT, right? Controlled by MSBT. So अगर हम लोग परसेंटेज वाइज में देखेंगे, परसेंटेज वाइज, so here the CIA percentage of weightage we can say is 65%, right? अगर परसेंटेज निकालते हैं तो, और TEE का जो वेटेज है डेट इज 35%, जो परसेंटेज वाइज अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ। आप बोलेंगे सर परसेंटेज वाइज क्यों करना है, क्योंकि अल्टीमेटली जो रिजल्ट आएगा, अटेनमेंट आएगा, वो अटेनमेंट जो है वो मार्क्स वाइज नहीं आएगा, वो वैल्यूज वाइज आएगा, वैल्यू वाइज। अब वैल्यू वाइज आएगा तो जब हम लोग को वैल्यू को डिवाइड करना रहेगा बिटवीन CI एंड TEE तो परसेंटेज चाहिए होगा, तो इसलिए यहाँ पे परसेंटेज निकाला गया है। मतलब एट द एंड व्हेन वी गेट सम वैल्यूज, तो वो वैल्यूज को हम लोग को अलग अलग करना है, CIA की वैल्यू ये, TEE की वैल्यू ये, तो उसमें हम लोग को जो है वो परसेंटेज हेल्प करेगा, इसीलिए, राइट?
नेक्स्ट, अब यहाँ पे हम लोगों ने टीचिंग का जो स्कीम था वो पूरा समझ लिया, राइट। सीओ कोर्स आउटकम जो है वो भी इम्पोर्टेंट है, वो भी एमएसबीटी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट। और कैसे डिजाइन करना है कोर्स आउटकम, आई थिंक सो बहुत सारे सेशन ऑलरेडी अटेंड किए हुए। कोर्स आउटकम कैसे डिजाइन करना, वी आर नॉट गोइंग ऑन दैट टॉपिक। कोर्स आउटकम भी जो है हमारे पास है, राइट। नाउ व्हाट इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट सीओपीओ मैपिंग, व्हाट इम्पोर्टेंट थिंग इज सीओपीओ मैपिंग इज बिन देयर। अब यहाँ पे प्रॉब्लम जो है वो अराइज हो जाती है सीओपीओ मैपिंग में। यहाँ पे क्या हो जाता है कि सीओपीओ मैपिंग करे तो कैसे करे, राइट। बिकॉज सीओपीओ मैपिंग कैसे करना है उसका कोई ऐसा मैनुअल नहीं है कि सीओपीओ मैपिंग ऐसे करना है, ये चीज करना है, ये हाई होना चाहिए, वो लो होना चाहिए, ओके। बिकॉज वेन एवर वी आर मैपिंग दैट थिंग, सीओपीओ ये बोर्ड भी प्रोवाइड नहीं कर रहा है, तो सीओपीओ मैपिंग कैसे कर रहे हैं उसका थोड़ा जस्टिफिकेशन होना चाहिए, जस्टिफिकेशन होना चाहिए, राइट। बिकॉज इफ यू आर टॉकिंग अबाउट सीओ एंड पीओ, राइट, तो मैं थोड़ा सा पीओ यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, तो पीओ भी थोड़ा सा आपको जो है वो समझ में आ जाएगा, ओके। सो पीओ नंबर वन इज नथिंग बट आवर बेसिक नॉलेज इज बिन देयर, राइट, बेसिक नॉलेज। तो अब यहाँ पे जो पीओ मैप सीओ फर्स्ट है, सीओ फर्स्ट जो है वो है यूज ट्रांजिस्टर एज ए लो पावर एम्पलीफायर, ओके। अब यहाँ पे एक टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक्स में, सॉरी, तो इसका वो सीओ है लो पावर एम्पलीफायर का। अब यहाँ पे जो पीओ नंबर वन है उसके साथ वो मैप कैसा हो रहा है, ओके, वो जस्टिफाइड मैनर में होना चाहिए। अब यहाँ पे जो इंस्टीट्यूट ने जो मेथड अडॉप्ट की थी वो थी 3 लेवल्स ऑफ मैपिंग, 3 लेवल ऑफ मैपिंग होना चाहिए, लो मीडियम एंड हाई। अब ऐसा भी कोई फिक्स नहीं है कि 3 लेवल ही हो, देर कैन बी हैव 5 लेवल ऑल्सो, 4 लेवल ऑल्सो। जितना कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो इंक्रीज करना है या जितना डीप में जाना है उतना जो है वो जा सकते हैं, 5 लेवल भी हो सकते हैं, 3 लेवल भी हो सकते हैं, राइट। बट इंस्टीट्यूट हैज सजेस्टेड, जो हम लोगों ने बहुत सारे आइडियाज लिए थे सबसे, सो वहाँ से आइडिया से ये समझ में आया था 3 लेवल इज इनफ, वहाँ पे जो है 3 लेवल से अच्छा खासा रिजल्ट जो है ऑब्टेन हो सकता है। तो अब यहाँ पे 3 लेवल्स आर देयर, हाई मीडियम एंड लो। अब ये हाई मीडियम एंड लो जो है वो सिर्फ एक आइडिया बता रहा है कि हाई मतलब कितना हाई, लो लो मतलब कितना लो, मीडियम मतलब कितना मीडियम, वो नहीं बता रहा है, राइट। सो बेसिकली अगर कोई यहाँ पे मैंने मैप किया है हाई, हाई वी आर मैपिंग इट, तो एनबीए में यही क्वेश्चन आता था कि वाई यू हैव मैप हाई, मैप हाई क्यों मैप किया हुआ है, ओके, वहाँ पे एम क्यों नहीं है, एल क्यों नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पीओ इज फॉर बेसिक नॉलेज, राइट। नाउ व्हाट वी कैन से, व्हेन ए स्टूडेंट इज लर्निंग दिस थिंग, द यूज ऑफ लो पावर एम्पलीफायर, इनडायरेक्टली जब वो स्टडी कर रहा है, इसका मतलब वो जो टॉपिक है एम्पलीफायर का उसमें बेसिक नॉलेज जो है उसकी थरो चाहिए ही चाहिए, बेसिक नॉलेज थरो चाहिए, ओके। तो पूरी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, वो भी हाई लेवल की, तब वो जाके जो है ये चीज अटेंड कर पाएगा। इसीलिए जो है हाई जो है मैप किया गया है। सो you should have verbal, we can say reason for that also, and documented proof also for that. What documented proof we can show the syllabus also, or we can show the questions coming in the sample paper like this also we can show it. So basically ये सबसे ज़्यादा important है कि हाई मीडियम लो जो है वो कैसे मैप करना है हर सीओ पीओ के साथ, राइट। अब जैसे जैसे वी कैन से ईयर ऑफ प्रोग्रेस होता है, ईयर ऑफ प्रोग्रेस, इफ सम टाइम फॉर पर्टिकुलर एकेडमिक ईयर वी हैव सेट दिस, ओके, कोई सेट किया हुआ है, ओके, हाई मीडियम लो जो है सेट किया हुआ है, बट लेटर ऑन वी आर रियलाइजिंग दैट कि कुछ हो सकता था वहाँ पे चेंजेस, तो छोटे मोटे चेंजेस जो है वो अलाउड होते हैं वहाँ पे, छोटे मोटे चेंजेस से जो है आउटकम उतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं करेगा, बट नॉट मोर और लार्जर चेंजेस, बिकॉज लार्जर चेंजेस करेंगे तो क्या होगा, जब क्राइटेरिया आगे के क्राइटेरिया में 6 में जहाँ पे हम लोग जो है वो कितना प्रोग्रेस हुआ है वो दिखाते, तो वो उसमें प्रॉब्लम होगा, ऐसा है, ठीक है। नाउ वी कैन से कि ये जो हाई मीडियम लो जो मैपिंग है दैट नीड ए स्ट्रॉन्ग ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन चाहिए इसके लिए, स्ट्रांगली, बिकॉज अगर गलत मैप कर दिया तो वी हैव टू गिव द रीजन बिहाइंड इट, ओके। अब यहाँ पे सारे पीओस जो है वो क्या, वी कैन से व्हाट दे रिक्वायर्ड, और सीईओ उनको क्या प्रोवाइड कर रहा है,
दैट इज द लिंक बिटवीन सीओ पीओ मैपिंग। मतलब पीओ की रिक्वायरमेंट क्या है, ओके, पीओ की रिक्वायरमेंट और सीओ क्या रिक्वायरमेंट, कौन सी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहा है, वेदर इट इज फुलफिलिंग द एवरी रिक्वायरमेंट ऑफ दैट पीओ, तो वी कैन से हाई लेवल। थोड़ा सा रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रहा है तो वी कैन से लो लेवल, ऑलमोस्ट वी कैन से मीडियम है तो मीडियम लेवल, लाइक दिस इज दैट आइडिया। ओके, अब यहाँ पे टोटली कंट्रोल होता है फैकल्टी पे, जो फैकल्टी जो है वो पढ़ा रहा है। तो ग्रुप ऑफ फैकल्टी मिलके डिसाइड कर सकते हैं कितना जो है वो हाई लेवल, मीडियम लेवल, लो लेवल होना चाहिए, राइट। अब ये तो हो गया लेवल की बात, राइट। बट इन अटेंडमेंट लेवल मस्ट हैव सम काइंड ऑफ वैल्यूज ऑल्सो। सिर्फ लेवल बता देने से काम नहीं चलेगा। ओके, सिर्फ 3 लेवल बता दिया तो वहाँ पे पॉइंट नहीं है, क्योंकि वैल्यू होगी तो पता चलेगा कितना परसेंटेज अटेंडमेंट हो रहा है या कितना वैल्यू अटेंड हो रहा है, राइट। So what we can say that we can map it like high को we can give the 3 values, medium को we can give the 2 values and low को we can give the 1 value, right। तो ये हो सकता है कि हमने क्या किया कि हाई वैल्यू जो है h उसको कोई वैल्यू असाइन करना है, तो we have given 3 वैल्यू। तो अब यहाँ पे 3 वैल्यू हो सकती है, या वॉट एवर इंस्टीट्यूट हैज बीन फाइनलाइजिंग और डिपार्टमेंट इज फाइनलाइजिंग, क्योंकि हाँ मटेरियल, एफडीपी मटेरियल, यस सर, लास्ट में ओके। तो व्हाट आई एम सेलिंग दैट के हाई लेवल, मीडियम लेवल, लो लेवल का वैल्यू जो है वो अल्टीमेटली जो है मालूम होना चाहिए, और वो डिपार्टमेंट डिसाइड करेगा, राइट। डिपार्टमेंट लेवल, बिकॉज सीओपीओ मैपिंग इज गोइंग फॉर द डिपार्टमेंट लेवल, तो डिपार्टमेंट हैज टू बी फाइनलाइजिंग कि कितना लेवल जो है वो रहेगा, और सारे कोर्सेज का वो सेम ही रहेगा, राइट क्योंकि डिपार्टमेंटल लेवल पे। तो यहाँ पे अगर डिपार्टमेंट डिसाइड, इफ डिपार्टमेंट इज डिसाइडिंग दैट हाई विल टेक 3 पॉइंट्स और 3 लेवल, मीडियम इज फॉर 2 एंड लो इज फॉर 1, ओके, तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सेम चीज जो है वो हो जाएगा। जहाँ जहाँ पे हाई है वहाँ वहाँ पे क्या हो जाएगा, नथिंग बट 3 आ जाएगा, मीडियम है वहाँ पे 2 आएगा, और एल जो है वहाँ पे 1 आएगा, राइट। तो अब यहाँ पे व्हाट यू कैन सी दैट के जो सीओ 5 सीओ है, 5 सीओ इज बिन देयर, वो 5 सीओ को पूरी तरीके से मैप किया गया है विद द पीओ एंड पीएसओ, ओके। प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम इज बिन देयर, क्योंकि हर प्रोग्राम का कोई स्पेसिफिक आउटकम भी हो सकता है। तो अब यहाँ पे जो मैप पूरा कर दिया गया है, राइट, सो वी कैन, व्हाट वी कैन डू इज वी कैन टेक द एवरेज वैल्यूज, एवरेज वैल्यूज, क्योंकि अल्टीमेटली क्या होता है जब हम लोग पूरे कोर्स का, मतलब सॉरी पूरे डिपार्टमेंट का जब कोर्स पीओ मैपिंग होता है ना, पूरे डिपार्टमेंट का, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट सेमेस्टर टू 6 सेमेस्टर, बराबर। तो उसमें क्या होता है, वी राइट द सब्जेक्ट में, मतलब जब हम लोग लास्ट का टेबल बनाते हैं उसमें क्या होता है, मैपिंग करना पड़ता है, सब्जेक्ट लिखा हुआ रहता है, सब्जेक्ट सब्जेक्ट और पीओ रहता है, सब्जेक्ट रहता है और पीओ रहता है लास्ट वाले में, ओके। अब वहां पे अगर हम लोग जो टेबल बना रहे हैं उसमें सब्जेक्ट जो आएगा उसमें हम लोग अलग से 5 सीओ नहीं लिखेंगे, अलग से विल नॉट राइट। वो लास्ट वाला जो टेबल होता है जिसमें सब्जेक्ट वर्सेस पीओ होता है, जिसको सीओ पीओ मैपिंग ही बोलते हैं, बट वहाँ पे सब्जेक्ट होता है, तो वहाँ पे सब्जेक्ट चाहिए हम लोग को। वहाँ पे वी विल नॉट मेक दैट 5 आउटकम, वहाँ पे 5 कॉलम, सॉरी 5 रोज बना के 5 आउटकम अलग से लिखने का, वैसा अगर करेंगे तो वो टेबल बहुत बड़ा हो जाएगा, राइट। सो व्हाट वी कैन डू इंस्टेड दैट, अगर मुझे कोर्स कोर्स वर्सेस पीओ का जो लास्ट का टेबल बनाना है वो चाहिए, तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन टेक द एवरेज, बिकॉज अल्टीमेटली एवरेज ही होगा, जब कैलकुलेशन करेंगे तो एवरेज ही होने वाला है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि एवरेज जो है, जो सेट किया हुआ है कोर्स, ये कोर्स वर्सेस पीओ का क्या है, जैसे पीओ 1 का एवरेज हो गया 3, लेवल 3, पीओ 2 का 3 हो गया, पीओ 3 का 3 हो गया, कोर्स वर्सेस पीओ का। अभी यहाँ पे 2.6 बिकॉज एवरेज आया है, तो पीओ 4 का जो कोर्स वर्सेस पीओ का एवरेज आया 2.6, उसी तरीके से पीएसओ 1 का 1 आया, पीएसओ 2 का 1 आया, ओके। तो यहाँ पे जो है सारी चीजें अभी बेसिक लेवल पे ही है, यहाँ पे कोई कैलकुलेशन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर फाइनलाइजिंग और फिक्सिंग हाउ विल अटेंड इट, ऐसा।
ओके तो यहाँ पे ये हो गया कि वी हैव गॉट द टारगेट वैल्यूज, यहाँ पे हम लोगों को टारगेट वैल्यूज मिल गई है, दिस इज अवर टारगेटेड वैल्यू, राइट। मतलब मेरा कोर्स से PO1 को जो टारगेटेड वैल्यू है 3 है, तो एट द एंड आई विल ट्राई दैट हाउ मच आई एम नियरर टू 3, 3 से कितना नियरर हूं मैं, राइट। 3 से ज्यादा तो होने ही नहीं वाला, करेक्ट है ना। देन फॉर PO4 माई टारगेटेड वैल्यू इज 2.6, मतलब जो सेट किया हुआ है वो 2.6 है। इसका मतलब वेन एवर आई विल एनालाइज इट, तो मेरा जो वैल्यू है वो 2.6 से ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने सेट ही 2.6 किया है। ओके मेरा कोर्स जो डिमांड है PO4 का दैट इज 2.6 ओनली, उससे ज्यादा नॉलेज जो है वहाँ पे जाएगा ही नहीं, क्योंकि वो इनडायरेक्ट अटेनमेंट में जाएगा। अगर आप बोलेंगे सर मैं एक्स्ट्रा पढ़ाता हूँ अपने सब्जेक्ट का MSBT से थोड़ा ज्यादा, MSBT जितना दे रहा है उससे ज्यादा पढ़ाता हूँ, तो अटेंड हो सकता है ना, बट that will go in indirect attainment if you are teaching extra, if you are taking extra examination, वो सब indirect में जाएगा, और indirect में जाएगा तभी भी वो वैल्यू जो है सेट वैल्यू से ऊपर नहीं जाएगी, like that। तो ये टारगेटेड वैल्यू है, ये जो है ये 3 जो यहाँ पे आया है, जो भी वैल्यूज यहाँ पे दिख रही है, दिस इज ऑल टारगेटेड वैल्यू। मीन्स फैकल्टी ने कोर्स स्टार्ट करने से पहले दे ही हैज और शी हैज टारगेटेड सम वैल्यू फॉर PO फॉर दैट कोर्स, तो ये टारगेट सेट किया हुआ है। अब जैसे कोर्स स्टार्ट होगा तो कोर्स स्टार्ट से एंड तक जितनी भी एग्जामिनेशन होती है या जो भी तरीके से हम लोग जो है वी कैन से वी टेक रिजल्ट, रिजल्ट इन द सेंस एग्जाम हुआ, एग्जाम का रिजल्ट आएगा, माइक्रो प्रोजेक्ट हुआ, माइक्रो प्रोजेक्ट को असेस करेंगे, और जो भी असेसमेंट हम लोग करते पूरे सेमिस्टर में, तो वो असेसमेंट करने के बाद कितना टारगेट अचीव हो रहा है वो पता चलेगा। तो ये टारगेटेड है, इससे ज्यादा नहीं आने वाला, ये तो हम लोग को पता है ये टारगेटेड है। अब एनालाइज करते हैं कि पूरे साल भर में व्हाट वी, मतलब पूरे सेमेस्टर में व्हाट वी कैन डू फॉर आवर सब्जेक्ट, राइट। जैसे मैंने आपको बताया कि what we have done is we have taken CIA, CIA का फुल फॉर्म कंटिन्यूअस इंटरनल असेसमेंट है। मैं वापस बोल रहा हूँ कि आपके दिमाग में वही क्वेश्चन आएगा कि एंड सेमेस्टर प्रैक्टिकल इसमें क्यों लिया है, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था फॉर सिंप्लिसिटी, सिंप्लिसिटी के लिए। ओके आप बोल सकते हैं सर वहाँ होना चाहिए था, आर्ग्यूमेंट हो सकती है कि वहाँ होना चाहिए था, सो आई कैन से हाँ हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेन एवर यू आर जस्टिफाइंग समथिंग, अगर जस्टिफिकेशन प्रॉपर है तो वो शिफ्ट भी हो सकता है। नाउ CIA में मैंने बताया CIA में कौन सा MSB। अब यहाँ पे ऊपर आप देखो व्हाट वी हैव डन इज असेसमेंट, जितने भी प्रोसेस है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, डायरेक्ट अटेनमेंट, इनडायरेक्ट अटेनमेंट, राइट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट अटेनमेंट विच हैज बीन गिवन बाय MSBT, मतलब जो रिपोर्ट कार्ड है, ओके स्टूडेंट का जो रिपोर्ट कार्ड है, वो रिपोर्ट कार्ड में जो वेटेज है, मार्क्स है, वो सब डायरेक्ट अटेनमेंट में जाएंगे, डेट विल गो अंडर डायरेक्ट अटेनमेंट। इनडायरेक्ट अटेनमेंट का मतलब है विच इज एक्स्ट्रा, जो रिपोर्ट कार्ड में इंक्लूड नहीं होने वाले, लाइक सम सेमिनार वी हैव कंडक्टेड फॉर द स्टूडेंट, सेमिनार लिया गया है पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, तो वो सेमिनार लेंगे तो उसका क्विज हो सकता है और फीडबैक हो सकता है, डेट विल गो अंडर इनडायरेक्ट अटेनमेंट। सो इनडायरेक्ट अटेनमेंट का जो असेसमेंट है प्रोसेस वो अलग होगा, और उसके इनडायरेक्ट अटेनमेंट किस तरीके से लिया जाएगा तो उसका कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, फीडबैक, क्विज और मैनी मोर थिंग लाइक इंडस्ट्रियल विजिट हो गया, तो बहुत सारी चीजें जो है वो इंक्लूड हो सकती है वहाँ पे। बट डायरेक्ट इज फिक्स, डायरेक्ट में कोई चेंजेस नहीं हो सकता, बिकॉज MSBT ने डायरेक्ट अटेनमेंट जो है वो फिक्स रखा हुआ है, और वो टोटली MSBT डिसाइड कर रहा है। तो 200 मार्क्स जो मैंने बताया उसमें से 130 CIA में है और 70 मार्क्स इज फॉर TEE। ओके राइट इतना। अगर किसी को कोई डाउट है तो देन आस्क मी, कोई कोई पॉइंट आप अगर सजेशन जो है बाद में भी अगर डाउट है तो बेसिकली यू कैन आस्क इट, सो आई कैन क्लियर इट। अभी तक जो भी टॉपिक हुआ उसमें एनी डाउट इज बीन देयर और व्हाट। ओके नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ओके अब यहाँ पे मैं एक टेबल बताऊंगा, देन विल गो इन द एक्सेल फाइल। जब हम लोग एनालिसिस करेंगे, कोई भी असेसमेंट करेंगे, लाइक PTT का पेपर चेक कर रहे हैं, PTT का पेपर चेकिंग हो रहा है, राइट। तो PTT का पेपर मीन्स PA जो यूनिट टेस्ट 1 होता है, जो पेपर चेक होता है, उसमें इमेजिन क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका A है, राइट। क्वेश्चन नंबर 1A 2 मार्क्स का है, 2 मार्क्स है,
अब 2 मार्क्स में से बच्चा जो है वो स्कोर कर रहा है 1 मार्क्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग जो है वो जब पेपर डिजाइन कर रहे हैं और विच एवर मार्क्स वी आर, जो मैक्सिमम मार्क्स है, जितने भी मैक्सिमम मार्क्स है, उसमें एक प्रोसेस ऐसा है कि एक एवरेज तरीके से हम लोग जो है वो अटेंडमेंट निकाल सकते हैं, एवरेज बेस, एवरेज करके, एवरेज करके वो आसान होता है। बिकॉज बच्चा जो भी क्वेश्चन नंबर 1 ए अटेम्प्ट करेगा, उसका जो भी मार्क्स आएगा, सेकेंड स्टूडेंट ने क्वेश्चन नंबर 1 ए अटेम्प्ट किया, वो जितने भी मार्क्स आएंगे सब में एवरेज हो जाएगा। ओके। एक दूसरा भी मेथड है जिसका नाम है थ्रेशोल्ड बेस। थ्रेशोल्ड बेस, थ्रेशोल्ड मतलब वी कैन से कि वी कैन टॉलरेट दिस वैल्यू, ऐसा कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि 4 मार्क का क्वेश्चन है, 4 मार्क का क्वेश्चन है, और अगर स्टूडेंट इज अटेम्प्टिंग फॉर 2 मार्क्स ऑल्सो, मतलब उसको 2 मार्क्स भी मिल रहे हैं, सो व्हाट वी कैन से, वी कैन टेक फॉर दैट कैलकुलेशन, मतलब वो हम लोग ने क्या किया, टॉलरेट कर दिया, उसको 2 मार्क्स भी मिल रहा है, मीन्स ही हैज गेन समथिंग, वहां से उसको कुछ गेन हुआ है, लाइक दिस। तो ये होगा थ्रेशोल्ड बेस। और अगर हम लोग को ऐसा टॉलरेट लेवल नहीं रखना है तो वी कैन पुट एवरेज बेस। एवरेज बेस में क्या होगा, हर मार्क्स जो है वो काउंट होगा, हाफ मार्क्स भी जो है वो बोला जाएगा कि अटेंडमेंट में काउंट होगा, 1 मार्क्स भी अटेंडमेंट में काउंट होगा, मीन्स उसको समझ में आया है उतना परसेंटेज, और 2 मार्क्स भी जो है वो काउंट होगा। तो यहाँ पे हम लोग जो है थ्रेशोल्ड बेस और एवरेज बेस जो है वो अटेंडमेंट जो है उसकी मेथड फॉलो कर सकते हैं। दोनों मेथड जो है वो एनबीए में एक्सेप्टेड है। ओके। तो अगर हम लोग थ्रेशोल्ड सेट करते हैं, कोई भी हमारा जो भी टॉपिक है उसका हम लोग थ्रेशोल्ड सेट करते हैं, जब भी हम लोग एग्जामिनेशन लेंगे उसका थ्रेशोल्ड हो, शायद जैसे मैं बोल रहा हूँ कि जो यूनिट टेस्ट की एग्जाम होगी, यूनिट टेस्ट की एग्जाम, उसका मैं थ्रेशोल्ड 50% सेट करता हूँ, 50%। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर क्वेश्चन 4 मार्क्स का है और स्टूडेंट ने 2 मार्क्स अगर उसको मिला है, 4 मार्क का क्वेश्चन है और 2 मार्क्स या 2 मार्क्स से ज्यादा मिला है, तो इसका मतलब आई विल से कि उसने वो क्वेश्चन में जो सीईओ है उसका जो अंडरस्टैंडिंग था वो अटेंड कर लिया, उसने अटेंड कर लिया। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? कि जो सीईओ था, कोर्स आउटकम, अगर मैंने क्वेश्चन 4 मार्क का सेट किया था, 4 मार्क का, और 4 मार्क का सेट करने के बाद अगर उसको 2 मार्क्स या 2 मार्क्स से ज्यादा मिल रहा है, तो इसका मतलब उसने वो कोर्स आउटकम को अटेंड कर लिया। अब यहाँ पे बोलेंगे कैसे समझ में आ रहा है, वो मैं एक्सेल से समझाता हूँ, एक्सेल से बहुत अच्छे से समझ में आएगा, राइट। तो एक्सेल में ये जो एक्सेल फाइल है, दिस एक्सेल फाइल इज फॉर PTT1 और वी कैन से यूनिट टेस्ट 1, यूनिट टेस्ट 1 है, राइट। अगर आपको क्वेश्चन पेपर देखना है तो ये रहा क्वेश्चन पेपर, वी कैन से ये क्वेश्चन पेपर है। ओके। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 है एंड 3 है, इज बिन देयर। तो ये 170 मार्क्स का है। और वी कैन से नेक्स्ट वन इज फॉर PTT1, ये PTT1 का, ये यहाँ पे देखते हैं। तो ये 20 मार्क्स का है, राइट, 20 मार्क्स का है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में A to E है, क्वेश्चन नंबर 2 में A to D है। ये MSBT का सैंपल क्वेश्चन पेपर है, बट हमने जो कंडक्ट किया था उसके हिसाब से हम निकालेंगे, राइट। तो जब क्वेश्चन पेपर का एग्जाम हो जाएगा, राइट, विल चेक इट, हम लोग चेक कर लेंगे, हम लोग मार्क्स देंगे। तो व्हाट वी विल डू, कैसे किया है ये, तो यहाँ पे क्या किया गया है, हर स्टूडेंट ने कौन से क्वेश्चन पे कितना अटेम्प्ट, कितना मार्क्स मिला है वो लिखा है यहाँ पे, ये चीज। ओके। मीन्स वी कैन से ये जो है 1 स्टूडेंट इज बिन देयर, ये स्टूडेंट है, उसको क्वेश्चन नंबर 1 A में हाफ मार्क्स मिला है, 1 C में 1 मार्क्स मिला है, 2D में 4 मार्क्स मिला है, 2E में 1 मार्क्स मिला है, राइट। तो ये पूरा टेबल हम लोगों ने बना लिया एक्सेल में फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। ये एक्सेल का पूरा टेबल बन गया, जहाँ पे यहाँ पे क्या पता चल रहा है, हर स्टूडेंट को वो क्वेश्चन पेपर जो था उसमें कितने क्वेश्चन वाइज मार्क्स मिले हैं, राइट। ये पूरा टेबल क्रिएट हो गया। अब ऊपर आप देख सकते हैं, ऊपर क्या है, ऊपर वो क्वेश्चन जो है, वो जो क्वेश्चन है उसका कौन से सीओ के साथ मैप हो रहा है, कौन से सीओ के साथ। तो मैंने आपको बताया था वो MSBT ने टेबल दिया हुआ है टॉपिक वाइज, राइट। तो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन पेपर होगा तो क्वेश्चन पेपर में हम लोग देख सकते हैं कि ये जो है क्लासीफाइड ट्यून एम्पलीफायर ऑन बेसिस ऑफ ट्यून सर्किट, तो ये होगा कौन सा, CO1 से। एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, एग्जाम्पल, ये CO1 से होगा। तो CO1 से होगा तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि CO1 लिख दिया, लेकिन यहाँ पे ट्यून एम्पलीफायर है तो ट्यून एम्पलीफायर सेकंड CO से हो रहा है तो ऊपर सेकंड CO लिख दिया।
जो भी क्वेश्चन जो है, जो क्वेश्चन सीओ से के साथ मैप हो रहा है, तो ऊपर मैंने सीओ लिख दिया, ऊपर जो भी सीओ था वो। ठीक है, सिंपल वे में कोई टॉपिक का क्वेश्चन ऐसा हो सकता है दो सीओ के साथ मैप हो सकता है, तो वो भी पॉसिबिलिटी है, कोई क्वेश्चन ऐसा है तो इसमें ऐसा हो रहा है दो सीओ के साथ मैप हो रहा है, तो दोनों ऊपर लिख दिया फॉर कैलकुलेशन पर्पस, नॉट कंपल्शन, खाली कैलकुलेशन के लिए मैं बोल रहा हूँ। ओके, अब पूरा ये टेबल बना दिया, राइट, पूरा टेबल जो था वो बना लिया। अब यहाँ पे आते हैं, अब मैंने आपको क्या बताया कि दो चीज़ों से जो है वी कैन टेक द अटेंडमेंट। एक तो एवरेज वैल्यू से हम लोग ले सकते हैं, एवरेज करके, दूसरा थ्रेशोल्ड करके। तो पहले एवरेज करके हम लोग देखते हैं कि एवरेज बेस में कैसे आ रहा है। एवरेज बेस में जैसे क्वेश्चन नंबर 1A, 1A है, 1A। ओके, 1A में जो भी मार्क्स आए हैं, स्टूडेंट आर 40, 40 स्टूडेंट है, राइट, 40 स्टूडेंट है। अब 40 स्टूडेंट में से कुछ स्टूडेंट वो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करेंगे, है ना, अटेम्प्ट नहीं करेंगे क्योंकि ऑप्शन अवेलेबल होता है इसीलिए। तो अब यहाँ पे अगर हम लोग वो स्टूडेंट का भी मार्क्स देखेंगे जिसने अटेम्प्ट ही नहीं किया, तो हमारा जो है वो वी कैन से कि जो अटेंडमेंट कर रहे हैं वो इम्प्रॉपर हो जाएगा, क्योंकि उसने अटेम्प्ट ही नहीं किया। अटेम्प्ट नहीं किया तो वी डोंट नो कि वेदर उसको नॉलेज है कि नहीं है। तो अटेम्प्ट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एनबीए। ओके, अगर अटेम्प्ट नहीं कर रहा है तो फिर पता नहीं चलेगा कि उसको आता है कि नहीं आता है, यही पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले निकाला गया कि कितने स्टूडेंट ने क्वेश्चन नंबर 1A, हाउ मेनी स्टूडेंट हैव बीन अटेम्प्टेड क्वेश्चन नंबर 1A। तो 37 स्टूडेंट ने अटेम्प्ट किया हुआ है, 3 ने अटेम्प्ट नहीं किया हुआ है, राइट। ये पहला पता चला, उस हिसाब से पूरा निकाला गया है, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, पूरा। तो ऐसे पूरा कितने स्टूडेंट ने कौन सा क्वेश्चन नंबर अटेम्प्ट किया है, राइट। उसी उसी तरीके से 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, कौन सा, पूरा, राइट। तो ये जो लाइन है वो बता रहा है कि कितने स्टूडेंट ने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, तो वील कंसीडर दैट स्टूडेंट ओनली। जिसने अटेम्प्ट ही नहीं किया तो उसको कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि वी डोंट नो कि उसको आता है कि नहीं आता है, अनलेस एंड अनटिल क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन आर कंपल्सरी। कंपल्सरी अगर लिखा जा रहा है तो फिर अलग बात है, बट अगर ऑप्शन है तो वहां पे हम लोग को पता नहीं चलेगा, राइट। कंपलसरी होगा तो फिर वी नो दैट कि अगर कंपलसरी है, बच्चे ने अटेम्प्ट ही नहीं किया, मतलब उसको नहीं आता है। बट अगर ऑप्शन अवेलेबल है और अगर उसने अटेम्प्ट नहीं किया है, इसका मतलब ये नहीं पता चलेगा कि आता है कि नहीं आता है, करेक्ट। आगे मैंने बोला दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक एवरेज बेस और एक थ्रेशोल्ड बेस। तो अब एवरेज बेस में एकदम सिंपल, जितने भी स्टूडेंट ने अटेम्प्ट किया है, जितने भी स्टूडेंट ने अटेम्प्ट किया है, वो पूरे स्टूडेंट के एवरेज मार्क्स कितने हैं, एवरेज मार्क्स, एवरेज। तो एवरेज आ गया 1.68, एवरेज आ गया, ये एवरेज मार्क्स है। ओके, एवरेज मार्क्स। अब एवरेज मार्क्स आ गए, अटेम्प्ट कितने ने किया है वो आ गया, करेक्ट है, अटेम्प्ट कितने ने किया है वो आ गया। इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, अब यहाँ पे एवरेज मार्क्स है, टोटल मार्क्स 2 है, तो एवरेज से हम लोग ये पता कर सकते हैं कि अटेंड कितना हुआ। जैसे कि एवरेज से कैसे अटेंडमेंट पता चलेगा, 2 मार्क्स सेट किया था, 2 मार्क्स मैक्सिमम थे, एवरेज निकला 1.68, 1.68। अगर मैं परसेंटेज निकालूंगा 1.68 अपॉन 2 इंटू 100, 1.68 अपॉन 2 इंटू 100, तो आएगा 83.78। तो ये आ गया हमारा अटेंडमेंट, अटेंडमेंट क्वेश्चन नंबर 1A का CO2 के साथ अटेंडमेंट का परसेंटेज आ गया। ओके, ओके। अब ये एवरेज बेस हुआ। और दूसरा कौन सा टेक्निक हो सकता है, जो थ्रेशोल्ड बेस पे था। तो थ्रेशोल्ड बेस पे मैंने क्या बताया था कि मैंने थ्रेशोल्ड सेट किया है 50%। 50% का मतलब अगर 2 मार्क का क्वेश्चन है और अगर स्टूडेंट ने 1 मार्क या 1 मार्क से ज्यादा आ रहा है, 1 या 1 से ज्यादा, तो वो मार्क्स एक्सेप्ट किए जाएंगे, ऐसा। तो यहाँ पे क्या निकाल रहा हूँ, कितने स्टूडेंट ने 50% से ज्यादा मार्क्स लाए। 50% से मतलब 2 सेट किया था, 2 से मतलब 1 मार्क्स से ज्यादा कितने ने लाए, 37 स्टूडेंट ने अटेम्प्ट किया था, 35 स्टूडेंट ने 1 मार्क्स से ज्यादा लाया, 35 स्टूडेंट ने 1 मार्क्स से ज्यादा आया। ओके, अब जब मैं इसका परसेंटेज निकालूंगा 35 अपॉन 37, 35 अपॉन 37, तो परसेंटेज आएगा 94.59, मतलब
94.59% of the student those who have attempted got more than 50% marks. मतलब ये मेरा थ्रेशोल्ड था, वो थ्रेशोल्ड 94.59% अचीव हो गया, 94.59% अचीव हुआ। गेटिंग? तो ये थ्रेशोल्ड बेस अटेनमेंट बोला जाएगा। ऊपर वाला एवरेज बेस, आप देख सकते हैं एवरेज बेस में क्या होगा, एवरेज बेस में सारे वो स्टूडेंट के मार्क्स काउंट होंगे जिसका अगर 1 से भी कम मिला है, तो उसमें क्या होगा, आपका जो अटेनमेंट है वो थोड़ा सा कम आने ही वाला है, बट ऑब्वियस है आने ही वाला है। थ्रेशोल्ड बेस में ये होगा कि थोड़ा आपका परसेंटेज जो है वो ज्यादा आएगा, बिकॉज वी आर नॉट कंसिडरिंग द मार्क्स, व्हाट वी आर कंसिडरिंग लेवल, एक लेवल बता दिया कि हाँ एक लेवल है, इतना आया ना ठीक है यू आर एलिजिबल, इतना आया यू आर एलिजिबल, वी आर नॉट गेटिंग के कितना मार्क्स आया है, हाँ हमने एक सेट किया हुआ है उससे ज्यादा है मतलब हाँ अचीव हो गया ऐसा। ठीक है, इस तरीके से क्या हुआ, एक एवरेज बेस से निकल सकता है, एक थ्रेशोल्ड बेस से निकल सकता है, सारे सारे क्वेश्चन के वैल्यूज सारे, ओके सारे वैल्यूज निकल सकते हैं। तो ये वैल्यूज आपको शायद समझ में आए होंगे, क्योंकि इसके बाद ही आगे का टॉपिक जो है वो इम्पोर्टेंट है। ओके, अगर किसी को डाउट है तो प्लीज़ पूछिए, ये अगर नहीं समझ में आया कैसे निकाला गया है तो, क्योंकि आगे का टॉपिक इस पे ही डिपेंड है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फर्दर टॉपिक। नाउ व्हाट वी हैव डन इज कि हर क्वेश्चन जो था, जो भी क्वेश्चन था उसको हम लोगों ने ऊपर ही मेंशन कर दिया कि उस क्वेश्चन का कौन सा सीओ मैप है, सीओ, राइट। तो अब यहाँ पे हम लोग को वैल्यूज आ गई, ये वैल्यूज आ गए, दिस वैल्यूज हैज बीन केम, राइट। तो अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये वैल्यूज में से कौन से CO1 के वैल्यूज है, CO1 के, CO1 के कौन से वैल्यूज है, तो यू कैन सी F वाला है, राइट, F वाला, G वाला है, G, I है, J है, FGIJ, K है, MN है। तो अब हम लोग बोल सकते हैं कि FGI है, राइट, J है, उसके बाद L सॉरी K है, L और M है, राइट। इसका मतलब वी कैन से कि जो भी वैल्यूज आ रहे CO1 में कौन से आ रहे थे, वी कैन से जो भी वैल्यूज आ रहे थे FG, उसका सब वैल्यूज हम लोग यहाँ पे परसेंटेज ले रहे हैं। CO1 में FG है तो यहाँ पे 80% है, 100%, फिर I है, फिर K है, फिर M और N है। तो जो भी परसेंटेज आए हैं वो सारे परसेंटेज को हम लोग क्या करेंगे, एवरेज निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे। तो एवरेज निकालेंगे तो यहाँ पे कौन सा एवरेज देखो, तो एफ एफ है, जी है, आई है, जे है, के है, एम एन एन, जो भी परसेंटेज है वो सबका एवरेज निकाले। तो एवरेज आया 91.31, 91.31 एवरेज आया, ओके। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस एवरेज, ये एवरेज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, थ्रेशोल्ड में जो वैल्यूज आई है उसका एवरेज निकाला, क्योंकि ये थ्रेशोल्ड में जो वैल्यूज आई है उसमें कितने क्वेश्चन थे, उसमें जितने भी क्वेश्चन थे उसमें 7 क्वेश्चन CO1 के थे, कितने, 7। तो 7 क्वेश्चन के 7% है, 7 क्वेश्चन के 7% है, राइट। तो अब 7% को क्या करेंगे, ऐड थोड़ी ना कर सकते, व्हाट वी विल डू, विल टेक एवरेज कि कितना हुआ एवरेज। तो एवरेज आया 91.31, ओके। और इसमें CO2 भी था, CO2, CO2 का कितना एवरेज आया 91.27, एक का आया 91.31 और दूसरे का आया 91.27, करेक्ट। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि अब परसेंटेज तो आ गया, ओके। अब जो भी परसेंटेज आया है उसको हम लोगों को कोई वैल्यू देना पड़ेगा, बिकॉज अल्टीमेटली जो हमने सेट किया हुआ है वैल्यू, उसके साथ वो चीज जो है वो मैच करेंगे तब पता चलेगा कितना अचीव हुआ, क्योंकि परसेंटेज तो नहीं लिख सकते हर जगह। तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन से दैट के ये जो वैल्यूज आएगी उसका अचीवमेंट को हम लोग उसको सॉरी ये जो परसेंटेज आएगा उसका जो भी वैल्यूज आएगी वो कैसे हम लोग करेंगे, मैच कैसे करेंगे, तो एक टेबल के जरिए, जैसे अगर ये जो वैल्यूज आ रही है, इफ दिस वैल्यू इज मोर, इफ दिस वैल्यू इज बिटवीन 50 एंड 60, 50 एंड 60, अगर ये परसेंटेज 50 और 60 के बीच में तो अटेनमेंट हुआ 1, 60 और 70 के बीच में तो अटेनमेंट हुआ 2, 70 और 80 के बीच में तो अटेनमेंट हुआ 3। अब ये परसेंटेज जो है, परसेंटेज
टीचर डिसाइड कर सकता है कितना होगा। ओके, जो फैकल्टी है वो डिसाइड कर सकता है कितना परसेंटेज रखना है। इससे ये पता चलेगा कितना आपका जो सिलेबस में आपका जो लेवल है वो कितना आप हाई रख रहे हो। अगर आप 50 to 60 के बदले में 60 to 70 रखा, मतलब अपने हायर टारगेट सेट किया है। ओके, हायर टारगेट पे। अगर आप कम पे रख रहे हो तो आप लोअर टारगेट पे है, लोअर टारगेट पे, तो आपको अगर लोअर मार्क्स भी आएंगे तो अटेनमेंट हाई हो जाएगा। तो ये एनबीए में समझ में आ जाता है कि आपने कितना सेट किया है। जितना हाई सेट करेंगे मतलब उतना आपका लेवल जो है टीचिंग स्टैंडर्ड आप हाई सेट कर रहे हैं, ऐसा है। ठीक है, इसका मतलब मैंने जो सेट किया हुआ है 50 to 60 के बीच में आया तो 1 मार्क्स मतलब 1 अटेनमेंट होगा, 1 लेवल। 60 to 70 के बीच में आया तो 2 होगा, और 70 के ऊपर आया ओके तो 3 होगा। तो अभी कितना आया 91.31, तो लेवल कितना आया 3, बिकॉज मैंने यहाँ पे सेट करके रखा है उसके हिसाब से। ओके, ये अगेन सेट करके रखा, तो यहाँ पे 91.27, उसके हिसाब से भी कितना हुआ 3। तो ये टेबल से व्हाट वी गॉट इट कि CO1 जो है वो PTT1 में कितना अटेंड हुआ, CO2 PTT1 में कितना अटेंड हुआ, CO1 PTT1 में कितना अटेंड हुआ, परसेंटेज वाइज भी है और वैल्यू वाइज भी है। परसेंटेज वाइज एज वेल एज वैल्यू वाइज, दोनों वाइज है यहाँ पे। ये हो गया यहाँ पे क्लियर। ओके किसी को कोई प्लीज एनी डाउट्स इज बिन देयर, यू कैन आस्क इट। अगर कोई डाउट डिफिकल्टी इफ यू आर फेसिंग, यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग, प्लीज आस्क मी, तो मैं सॉल्व कर सकूँ। ओके ओके okay, we can continue. Okay, so this is for PTT1 or we can say unit test 1 examination is been there. Okay, ये unit test 1 हुआ, उसका मैंने पूरा कैलकुलेशन करके रख दिया। ओके पूरा कैलकुलेशन हो गया, CO1 भी पता चल गया परसेंटेज वाइज में कितना अटेंड हो रहा है, CO2 जो है परसेंटेज वाइज में कितना अटेंड हो रहा है, और उसका परसेंटेज वाइज से मैंने वैल्यू भी पुट ऑन कर दिया। ओके वैल्यू 3 कैसे आया, तो मैंने बताया वो टीचर डिसाइड करेगा कि उसको जो लेवल स्टार्टिंग में ही डिसाइड होगा। ओके ऐसा नहीं है कि रिजल्ट आने के बाद डिसाइड होगा, नहीं, स्टार्टिंग में ही जब वो सिलेबस का जब मैं बता रहा था उसमें ही वो डिसाइड करेगा कि अगर इफ it is marks is coming between, percentage is coming between 60 to 50 to 60, then 1 level, 60 to 70 then second level, and then 70 above is third level. If faculty wants that higher level should be achieved तो वो 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90, sorry 80 above भी रख सकता है। like this also it can be happen. okay डिपेंड है कितना रखना है फैकल्टी को, क्योंकि जितना फैकल्टी हाई रखेगा उतना उसको टीचिंग हाई करनी पड़ेगी। सिंपल सा लॉजिक है, टीचिंग हाई होगी, और टीचिंग हाई इन द सेंस मोर एफर्ट्स लगेंगे, क्योंकि स्टूडेंट हैज टू स्कोर इट राइट, क्योंकि पेपर होगा तो स्टूडेंट को स्कोर करना पड़ेगा। लाइक दिस, कम स्कोर आएगा तो कम अटेंडमेंट होगा। ओके आगे, सो दिस इज फॉर वी कैन से PTT1 और यूनिट टेस्ट 1। सिमिलरली जो भी हमारे डायरेक्ट अटेंडमेंट है सेकेंड वन PTT2, तो PTT2 कंडक्ट होगा। PTT2 सिमिलरली PTT2 कंडक्ट होगा। PTT2 कंडक्ट होने पे सेम स्ट्रेटेजी यूज होगी। PTT2 में जो भी क्वेश्चन है, जैसे 1A है, 1A का कौन सा CO है, 1B का कौन सा CO है, 1C का कौन सा CO है, 1D का कौन सा CO है, विल राइट इट, वो मेंशन करेंगे राइट वो मेंशन करेंगे कौन सा CO है करके। इससे क्या होगा, मेंशन करने से वो अटेंडमेंट इजीली कैलकुलेट हो जाएगा, जैसे प्रीवियसली किया है। अब पूरा टेबल फिलअप होगा जब चेकिंग हो जाएगी राइट, उसके बाद में सेम मेथड से अगेन विल कैलकुलेट थ्रेशोल्ड बेस्ड अटेंडमेंट। ये थ्रेशोल्ड बेस्ड, एवरेज बेस भी कर सकते हैं। ओके एवरेज बेस भी कर सकते हैं, अगर इंस्टीट्यूट वो डिपार्टमेंट डिसाइड करेगा अगेन, क्योंकि सारे फैकल्टी सेम वे से ही जाएंगे, अलग अलग नहीं हो सकता। ओके एवरेज बेस से डिसाइड हो रहा है तो सेम वही से होगा। ओके नेक्स्ट व्हाट वी कैन डू इस सेम वे से क्या होगा, कितने CO है यहाँ पे अगर हम लोग देख रहे हैं, जो सारे जितने भी CO क्वेश्चन पेपर में अवेलेबल है वो हम लोगों ने देखा है। यहाँ पे CO2 है, CO3 है, CO1 है, अगेन 3 है, तो
जो क्वेश्चन पीटीटी यूनिट टेस्ट 2 हो रहा है उसमें जो जो क्वेश्चन वहाँ पे एग्जामिनेशन है उसके हिसाब से जो है अटेनमेंट आएगा। तो सेम वे से जैसे CO1 क्वेश्चन पीटीटी 2 में लिया गया है, CO1 का क्वेश्चन अगर पीटीटी 2 में है तो उसका कितना परसेंटेज एवरेज आया है, मतलब एफ क्वेश्चन में, और जो एफ वाला पार्ट था, एफ मतलब 1D और 1E दोनों, 1D और 1F में CO1 है, तो 1D में 100% आया और सेकेंड वाले में 57, तो एवरेज कितना हो गया 78.57। तो सेम वे से जैसे पीटीटी 1 का निकाला गया था सेम तरीके से विल गो फॉर पीटीटी 2। अब पीटीटी 2 में भी परसेंटेज विल रिफ्लेक्टेड, ओके परसेंटेज आएंगे। अब वही परसेंटेज को वैल्यूज के साथ कैसे मैप करेंगे, तो सेम मैंने बोला एक सेट करके रखा हुआ है। अगर 50 और 60 के बीच में आ रहा है तो 2 वैल्यू, 60 और 70 के बीच में आ रहा है तो, सॉरी 50 टू 60 में 1 वैल्यू, 60 टू 70 में 2 वैल्यू, और 70 अबाव में 3 वैल्यू, लाइक दिस। तो अभी सब 70 अबाव है तो 3 वैल्यूज आया है। तो पीटीटी 1 जैसे निकाला, पीटीटी 2 भी वैसे ही निकालेंगे। देन प्रैक्टिकल एग्जाम, सॉरी प्रैक्टिकल असेसमेंट जो कर रहे हैं, प्रैक्टिकल असेसमेंट, प्रैक्टिकल का जो असेसमेंट करता है आउट ऑफ 25 मार्क्स, उसमें बच्चों को 25 मार्क्स में से आउट ऑफ देंगे, राइट। अब वो ही प्रैक्टिकल में मैंने बताया था आपको, वो राउंड कलर का जो चार्ट था सिलेबस में, उसमें बताया गया था कौन सा प्रैक्टिकल कौन से सीओ के साथ मैप हो रहा है। तो उसी तरीके से हम लोग देखेंगे और ये प्रैक्टिकल की शीट पूरी बनाएंगे। दिस इज फॉर प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल थिंग इज बिन देयर, राइट। प्रैक्टिकल के मार्क्स के साथ है, तो इसमें हर प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल नंबर 1 जो है वो CO1 के साथ, प्रैक्टिकल नंबर 2 CO1 के साथ, सिमिलरली पूरे प्रैक्टिकल जो है, जैसे 23 प्रैक्टिकल इज बिन देयर इन अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स, तो पूरे 23 प्रैक्टिकल का रिकॉर्ड इसमें आया है। सिमिलरली थ्रेशोल्ड बेस अटेनमेंट हम लोग निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे थ्रेशोल्ड बेस अटेनमेंट सब का सब 100% आ रहा है और ऑलमोस्ट एक का कम आ रहा है। अब ये 100% इतना ज्यादा कैसे हो गया, 100% इज कमिंग बिकॉज इट इज ए प्रैक्टिकल, राइट। अगर कोई प्रैक्टिकल जो है पुअर परफॉर्मेंस कोई स्टूडेंट कर रहा है, पुअर परफॉर्मेंस कर रहा है, परफॉर्म नहीं कर रहा है, परफॉर्म तो करना ही है। इन एमएसबीटी एवरी स्टूडेंट मस्ट हैव परफॉर्म द प्रैक्टिकल, ऐसा प्रोविजन है ही नहीं कि स्टूडेंट परफॉर्म नहीं कर सकता, है ना। परफॉर्म तो करना ही है। अब वो स्टूडेंट परफॉर्म कर रहा है और हमने 50% थ्रेशोल्ड रखा है, मतलब अगर 25 मार्क का प्रैक्टिकल है, जो प्रैक्टिकल मैनुअल में होता है 25 मार्क का होता है, अगर 25 में से थ्रेशोल्ड 50% है, मतलब अगर बच्चे को 12.5 के ऊपर मार्क्स आ रहे फॉर 12.5, इट इज कमिंग अबाउट 12.5, तो 100% ही आने वाला है। यस, अनटिल एंड अनलेस थ्रेशोल्ड ज्यादा रख रहे हैं तो। लेकिन थ्रेशोल्ड जो है वो ऑलमोस्ट सेम ही रखते, सबका सेम, वाई टू चेंज फॉर वन थिंग। तो अगर हम लोग थ्रेशोल्ड 50% रखा है, तो इफ स्टूडेंट इज स्कोरिंग मोर देन 12.5 मार्क्स इन ए प्रैक्टिकल, और जो भी प्रैक्टिकल की मैनुअल है उसमें, तो इसका मतलब सीधा सीधा ही इज गेटिंग अटेंड, मीन्स अटेंडमेंट वी आर गेटिंग फॉर दैट स्टूडेंट, तो 100% ही आएगा। अब आप बोलेंगे सर 100% नहीं, ये वैल्यूज प्रॉपर नहीं है, तो थ्रेशोल्ड ज़्यादा रख सकते हो, थ्रेशोल्ड परसेंटेज ज़्यादा रख सकते हो फॉर प्रैक्टिकल। 70% यू कैन कीप, 80% वी कैन कीप। उससे क्या होगा, ठीक है, जिस बच्चे को कम आ रहे तो फिर वो अलग हो जाएगा, कम हो जाएगा परसेंटेज, लाइक दिस। सेम वे से प्रैक्टिकल सारे सारे सीओ, प्रैक्टिकल के सारे सारे सीओ को जितने भी परसेंट आ जाए उसको एवरेज किया गया, एवरेज, राइट। और वो एवरेज करके कितना लेवल आ रहा है, एवरेज करके कितना लेवल आया। इस तरीके से पीटीटी 1 हो गया, पीटीटी 2 हो गया, प्रैक्टिकल हो गया। सेम तरीके से वी कैन गो फॉर एक्स्ट्रा एंड सेमिस्टर प्रैक्टिकल, एंड सेमिस्टर प्रैक्टिकल, एंड सेमिस्टर प्रैक्टिकल 50 मार्क्स का है, राइट। तो सेम मेथड से, सेम 50 मार्क्स का है प्रैक्टिकल एग्जाम, 50 मार्क्स के प्रैक्टिकल एग्जाम में वी आर कीपिंग थ्रेशोल्ड मोर देन 50%, तो 38 बच्चों ने 38 बच्चे जो थे वो एग्जामिनेशन दिए हैं, 38 बच्चों ने, उसमें से 38 बच्चों में से 19 स्टूडेंट को 50% से ज्यादा आया है, 50% से ज्यादा मतलब 25 मार्क्स से ज्यादा। इसका मतलब थ्रेशोल्ड कितना आया, वैल्यू 50%, मतलब 38 अटेम्प्ट किया, 19 बच्चों को 50% से ज्यादा आया है। तो अगर ये दोनों का परसेंटेज निकालूंगा 19/38 तो 50% आता है। अब 50% आया, अब क्या हो रहा है, अब प्रैक्टिकल एग्जाम में स्पेसिफिकली कोई सीओ वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर भी सकते हैं इंडिविजुअली, और नहीं भी कर सकते, डिपेंड है। बिकॉज इफ स्टूडेंट इज गिविंग ए प्रैक्टिकल
ओके कोई प्रैक्टिकल दे रहा है, एग्जाम दे रहा है, तो उसमें वाइवा भी होता है, दूसरी चीजें भी होती है। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो ऑलमोस्ट सारे सीओ को अटेंड कर ही रहा है, राइट। तो जो भी वैल्यूज जाएगी हो सकता है आप कॉमन टू ऑल रखो, या फिर इंडिविजुअली स्टूडेंट वाइज भी फिर सेपरेट करना पड़ेगा, कौन से स्टूडेंट ने कौन सा सीओ का प्रैक्टिकल किया हुआ है, वैसा भी कर सकते हो। तो इसमें क्या हुआ, नथिंग बट थ्रेशोल्ड के हिसाब से 50% आया थ्रेशोल्ड। तो वो जो टेबल सेट किया हुआ है, मतलब 50 to 60 आएगा तो 1, 60 to 70 में 2, 70 to 80 में 3, तो अभी 50 आया है, तो सबको 1 लेवल गया, मतलब यहाँ पे सबसे कम अटेंडमेंट आया। बाकी सब में 3 3 अटेंडमेंट आ रहा था, यहाँ पे 2 1 ही अटेंडमेंट आया। सिमिलरली फॉर माइक्रो प्रोजेक्ट, सॉरी, यस माइक्रो प्रोजेक्ट, मिनी प्रोजेक्ट वी कैन से, माइक्रो मिनी प्रोजेक्ट। सेम माइक्रो मिनी प्रोजेक्ट में सेम सीओ वाइज स्ट्रेटेजी लिया गया। उसमें परसेंटेज आया 97.37 और 100। यहाँ पे दो क्यों आया, क्योंकि जो माइक्रो प्रोजेक्ट होता है, राइट, उसमें 6 मार्क्स और 4 मार्क्स डिवाइड करते हैं, ग्रुप में मार्क्स होते हैं और इंडिविजुअल के मार्क्स होते हैं। ग्रुप मार्क्स 6 होता है, इंडिविजुअल के 4 होते हैं, लाइक दिस इट इज बिन देयर। और भी डिवाइड कर सकते हैं अगर करना चाहते हो तो अगेन यहाँ पे परसेंटेज आया, और ये परसेंटेज के हिसाब से अगेन वैल्यूज आती है 3 3 3। तो यहाँ पे क्या क्या हो गया, PTT 1 हो गया, PTT 2 हो गया, प्रैक्टिकल की मैनुअल के मार्क्स हो गए, प्रैक्टिकल के एग्जामिनेशन के मार्क्स हो गए, माइक्रो प्रोजेक्ट के मार्क्स हो गए। नाउ व्हाट नेक्स्ट, क्या बचा है, बोर्ड एग्जाम के मार्क्स। सपोज ये फाइल क्रिएट हुई है, बोर्ड एग्जाम मार्क्स। तो बोर्ड एग्जाम जब भी कंडक्ट होगा, ओके उसके मार्क्स आएंगे। अब बोर्ड एग्जाम में वी नो दैट कि हम लोग बोर्ड एग्जाम के मार्क्स को सीओ वाइज सेपरेट नहीं कर सकते, CO1 CO2 CO3, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में सिर्फ ओनली वी आर गेटिंग मार्क्स ओनली। तो अब इस बोर्ड एग्जाम में लेट से कि जितने भी स्टूडेंट अटेम्प्ट किए हैं बोर्ड एग्जाम, उसमें से कितने बच्चों को 40% से ज्यादा, अब 40% यहाँ पे क्यों लिया गया है, बाकी सब में तो 50 लिया था। अब बाकी सब जो भी एग्जामिनेशन दे, डेट इज वी कैन से लेवल सेट बाय इंटरनल फैकल्टी, उसका फैकल्टी का लेवल डिसाइड कर रहे थे। यहाँ पे बोर्ड एग्जाम में पासिंग मार्क्स वी कैन से, हम लोग पासिंग मार्क्स डिसाइड कर सकते हैं 40%। तो यहाँ पे हम लोग 50% कर सकते हैं कि हाँ वी कैन कीप 50% ऑल्सो, बट वी हैव द रीजन के बोर्ड इज गिविंग 40% पासिंग मार्क्स, तो 40% रख सकते हैं, रीजन हो गया एक। 50% भी रख सकते थे, वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं होता, प्रोफेसर आते तो 60% भी रख सकते थे, इट डिपेंड ऑन फैकल्टी ऑल्सो, बट एक यूनिवर्सल रखना था तो 40% रखा हुआ है। तो यहाँ पे कितने स्टूडेंट ने अटेम्प्ट किया, कितने स्टूडेंट को 40% से ज्यादा मार्क्स आए, तो उसका वैल्यू आ जाएगा 75%। जैसे 75% आया तो उसका वैल्यू आ जाएगा 3, बिकॉज वहां पे सेट किया हुआ है। ओके अब सारे चीजें हो गई, सारी चीजें हो गई, PTT 1 हो गया, PTT 2 हो गया, प्रैक्टिकल के मार्क्स हो गए, प्रैक्टिकल एग्जाम के मार्क्स हो गए, माइक्रो प्रोजेक्ट हो गया, एंड सेमेस्टर के भी मार्क्स हो गए, सब मार्क्स आ गए, सबके मार्क्स आ गए। अब क्या करना पड़ेगा, अब जो सबके मार्क्स आए हैं उसको जितने जो भी सीओ को वैल्यूज मिली है वो सब सीओ को एक साथ लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे PTT 1 में CO1 था तो 91 91। आप बोलेंगे ये टेबल जो था अटेंडमेंट वैल्यू जो आया था, PTT 1 में दो सीओ थे, CO1 था CO2 था, दोनों में 91 91 आया और लेवल वैल्यू 3 3 आई है ना। PTT 2 में 5 सीओ थे, पांचों सीओ की वैल्यू परसेंटेज लिखा, वैल्यू लिखा। ओके जो मिला है वही चीज यहाँ पे पूरा टेबल में आ गया है, मतलब ये जो लास्ट में मिला था, ये जो लास्ट, ओके ये वैल्यूज ये 91 91 3 3, तो यहाँ पे पूरी वैल्यूज लिख दिए। सिमिलरली प्रैक्टिकल पूरा हो गया, प्रैक्टिकल का जो भी परसेंटेज 100% में आ रहा था, बिकॉज सारे प्रैक्टिकल अटेम्प्ट करते हैं और सबको 12.5 के ज्यादा मिलते हैं। सिमिलरली ESC का टेबल पूरा, मिनी प्रोजेक्ट माइक्रो प्रोजेक्ट का टेबल पूरा। फिर अब नेक्स्ट व्हाट नेक्स्ट वी हैव टू डू, तो मैं एवरेज हटा देता हूँ समझने के लिए। ओके एवरेज हटा, सॉरी, ओके ओके अंडू, ओके ओके ठीक है, यहाँ पे देखते हैं। सो
यहाँ पे क्या किया गया, ये सारे जो वैल्यूज थे, ये जो सारे वैल्यूज है उसका एवरेज निकाला गया, सारे वैल्यूज का, क्योंकि सब एग्जामिनेशन का एवरेज देखना पड़ेगा, तो सब एग्जामिनेशन का एवरेज देखा गया। एवरेज देखा गया तो एवरेज आया पहले का 85, सॉरी 84, सेकेंड का एवरेज आ रहा है 85, थर्ड वाले का एवरेज आ रहा है 83, तो ऐसे करते सारे एवरेज निकाला गया, और सिमिलरली ये वैल्यूज का एवरेज निकाला गया, ये वैल्यूज का। तो यहाँ पे क्या हो गया, सारे एग्जामिनेशन होने के बाद जो भी एग्जामिनेशन में परसेंटेज या वैल्यूज आ रहे हैं उसका सबका एवरेज निकाला गया, तो ये एवरेज वैल्यू मिला, परसेंटेज एवरेज एंड वैल्यूज एवरेज, ये एवरेज मिला। ओके, अब ये एवरेज हो गया सारा, तो ये सी आई ए का मैंने एवरेज निकाला। सी आई ए मतलब कौन सा, जो 130 मार्क्स जो था वो, है ना। अब टी डबल ई का, टी डबल ई जो भी आया 75, है ना। अब क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पे हम लोग जो है, जो एवरेज निकाला गया है 84%, 83%, ये जो एवरेज आया है, इसको जो हमारा स्टार्टिंग का जो वेटेज डिस्ट्रीब्यूशन था, अगर आपको याद रहेगा स्टार्ट में मैंने बताया था, एकदम स्टार्ट में, वहाँ पे वेटेज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या था, मैंने बताया था 130 मार्क्स मैंने सी आई ए को लिया है और 70 मार्क्स मैंने टी डबल ई, इसके हिसाब से 65% जो है वो सी आई ए में जा रहा है और 35% जो है वो टी डबल ई में जा रहा है। अब क्या हुआ, मैंने सी आई ए के मार्क्स अलग लिखा हो, टी डबल ई के मार्क्स अलग लिखा हो, राइट। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जो भी वैल्यूज आई है, जो भी वैल्यूज आई है, जो भी वैल्यूज आई है, ओके, परसेंटेज में वैल्यूज आई है और लेवल 3 में आई है, 1 2 3 के लेवल्स में भी वैल्यूज आई है, मतलब उसके हिसाब से भी मिला हुआ है। तो मैं वो जो वैल्यूज आई है उसको स्केल करता हूँ, स्केल डाउन करता हूँ, मतलब ये जो है इसको स्केल डाउन करता हूँ 65% पे, 65% पे स्केल डाउन करता हूँ, स्केल डाउन। मतलब व्हाट वी आर टेलिंग कि ये 100% वैल्यू है, ये 100% वैल्यू है, इसका मैं 65% ले रहा हूँ। आई एम टेकिंग दिस वैल्यू जो है इसका 65% ले रहा हूँ। ये 100% वैल्यू है जो मुझे अचीव हुआ है, ये मेरा पूरा 100% वैल्यूज है। ये वैल्यू में से मैं 65% लेता हूँ क्योंकि ये सी आई ए है, और टी डबल ई में से मैं 35% लेता हूँ। तो क्या किया गया, ये वैल्यू का 65% निकाला गया, तो ये वैल्यू का 65% निकाला गया, तो ये आया 65% निकाला गया। तो ओके, क्योंकि डिवाइड करना है ना सी आई ए और टी डबल ई के मार्क्स को, तो ये 65% का वैल्यू निकाला गया, तो ये आया 84 का 65% 54 होता है, 85 का 65% 55 होता है, तो ये 65% में आया। ओके, ये 65% में, और इसमें जो है ये आया 35% में। तो ये 65%, ये 35%, दोनों को प्लस करेंगे तो सी आई ए प्लस टी डबल हो जाएगा, तो दोनों को प्लस करेंगे तो 100, तो 65% को, और सॉरी ये 65% है और ये 35% है, दोनों को प्लस करते हैं तो हमारा जो है वो टी डबल और सी आई दोनों प्लस हो गया, वेटेज के हिसाब से, वेटेज के हिसाब से, वेटेज के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो वेटेज के हिसाब से टोटल कोर्स अटेनमेंट मिल गया, मतलब मेरा जो अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स का डायरेक्ट अटेनमेंट है वो मिल गया, डायरेक्ट अटेनमेंट, ये टोटल वाला। अब इसको क्या करना है, इसको सिर्फ जो है मुझे पीओ के साथ डालना है, पीओ जो सीओपीओ मैपिंग किया था ना, सीओपीओ मैपिंग, उसमें ये वैल्यूज डालनी है, सीओपीओ मैपिंग में वैल्यूज डालनी है। तो आप बोलेंगे सर सीओपीओ मैपिंग में वैल्यूज कैसे डालेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये तो सेट किया हुआ है, देखो ये सेट किया हुआ है, स्टार्टिंग में बताया था ये सेट किया हुआ है ना। अब ये सेट किया हुआ है और यहाँ पे मिला है परसेंटेज और वैल्यूज में, तो अब यहाँ पे वैल्यूज कैसे डालेंगे हम लोग, सिंपल सी बात है। सिंपल सी बात क्या है, जो भी वैल्यू मिल रही है ये आउट ऑफ 3 में है, ये आउट ऑफ 3 है, देखो एकदम सिंपल तरीके से बताता हूँ, ये आउट ऑफ 3 वैल्यूज में से आउट ऑफ 3 है, और यहाँ पे अगर मैं वैल्यू है 3, है ना, ये 3 है, सपोज ये 3 है, सेट किया हुआ 3 है, और 3 से में से कितना मिला 2.74, तो यहाँ पे 2.74 आएगा, यहाँ पे ये देखो 2.74, है ना। 3 कितना है 2.74 CO2 का, ये रहा 2.74, यहाँ पे 2.74 लिखूंगा, ये रहा। यहाँ पे 3 सेट था CO3 का, कितना आया 2.68, तो यहाँ पे 2.68 लिखूंगा, तो ये टेबल फिल कर रहा हूँ लाइक। तो ये सेट वैल्यू था, सेट वैल्यू के हिसाब से टेबल फिल कर रहा हूँ, लेकिन अभी यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ होगी, जहाँ पे 2 मैंने सेट किया था, 2 सेट किया था, और यहाँ पे 2 सेट किया था CO1 को, लेकिन मेरा CO1 आया है 3 के लेवल में, 3 मतलब वो जो आया मैंने 3 हाईएस्ट है, और मेरा 2.74 आया, लेकिन मेरा लेवल सेट मैंने 2 ही रखा था,
मैंने 2 ही सेट रखा था, लेकिन अभी जो वैल्यू मिल रही है मुझे 3 के कंपेयर में मिल रही है, राइट? आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम से? यहाँ पे मैंने सेट 2 किया हो, ये मैक्सिमम लेवल है, पीओ के साथ जब सेट किया हो वो मैक्सिमम लेवल है, ये पीओ के साथ मैपिंग वाला है। यहाँ पे सिर्फ सीओ का वैल्यूज आ रही है, सीओ की वैल्यूज, और वो वैल्यूज 3 से है, 3 में आउट ऑफ 3 है, ये आउट ऑफ 3 है, टोटल वैल्यू आउट ऑफ 3, ये सबकी सब वैल्यू आउट ऑफ 3 है। अब ये 3 वैल्यूज को मैं 2 के साथ कैसे मैच कर सकता हूँ, 3 को 2 के साथ मैच कैसे कर सकता हूँ? तो जैसे हम लोग जो है वो एक एग्जाम पे करते थे, मैथमेटिक्स का सिंपल रूल लगा सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। तो जब हम लोग बोल रहे थे 3 वैल्यूज की बात आ रही है, 3 वैल्यूज की, और तो हम लोग जो है वो मैप कर रहे हैं 3 के साथ, और अगर 2 के साथ कर रहे हैं तो उसका परसेंटेज निकालना पड़ेगा। कैसे परसेंटेज? तो हम लोग बोल सकते हैं कि अगर 3 के 3 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है 3, तो डायरेक्ट वैल्यू जाएगी, मतलब सेम टू सेम पूरी वैल्यू जाएगी, सेम टू सेम। और अगर यहाँ पे 2 लिखा हुआ है 2, तो 2 का हम लोग 66% ले सकते हैं, या 60%, 66 जो है वो एकदम एक्यूरेट वैल्यू हो जाएगी 66, और 60% राउंड ऑफ बोला जाएगा, राउंड ऑफ। आप बोलेंगे 66 कैसे, 2/3 वैल्यू, 2 है ना, तो वो 2/3 हुआ, 2/3 कितना होता है, 66% होता है। अगर 1 सेट किया हुआ तो कितना लेंगे, 1/3, 1/3 कितना होता है, 33%, एग्जैक्ट 33। तो यहाँ पे 60 और 40 क्यों लिखा है, राउंड ऑफ किया हुआ है, राउंड ऑफ, राउंड ऑफ कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते, अगर एग्जैक्ट चाहिए तो एग्जैक्ट भी ला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे कितना था, यहाँ पे 2 सेट था, देखो हाँ प्लीज, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, लास्ट पार्ट है। यहाँ पे 2 सेट था, 2 सेट था, ओके, यहाँ पे 2 सेट था, और यहाँ पे जो वैल्यूज मिल रही है वो 3 से मिल रही है, 3। तो अब क्या कर रहा हूँ, इसका 2/3 निकाल रहा हूँ, इसका 2/3, मतलब 66% या 60%, तो इतना आ रहा है। ये यहाँ पे 1 सेट है, 1 सेट है, और मुझे जो वैल्यू मिल रही है वो 3 से मिल रही है, तो इसका क्या करूंगा, 33% निकालूंगा, या 40%, जैसा भी, राउंड ऑफ करना है राउंड ऑफ भी कर सकते, नहीं करना है राउंड ऑफ, एक्चुअल वैल्यू भी आ सकती है, एकदम एक्चुअल वैल्यू, राउंड ऑफ नहीं करना है तो। राउंड ऑफ इज फॉर से वी कैन से सिंप्लिसिटी, सिंप्लिसिटी के लिए राउंड ऑफ कर रहे हैं, बाकी और कुछ नहीं। तो इस तरीके से जो भी वैल्यूज मिली, ये जो वैल्यूज मिली वो टेबल में यहाँ पे रख दिए, कौन से टेबल में, सीओपीओ में, ये टेबल में, राइट? अब ये वैल्यूज जो मिली टेबल में, इसको लास्ट में जैसे मैंने एवरेज किया था, यहाँ पे देखो आपको याद रहेगा, दिस इज द एवरेज वैल्यू। एवरेज कौन सा, जो सीओ पीओ का जो एवरेज करके रखा था, तो 3 मिलना चाहिए था, कितना आया 2.7, मतलब कितना अचीव किया, 2.7 अचीव किया। 3 सेट किया था गोल मेरा, 2.7 अचीव हुआ। 3 सेट किया था, 2.7 अचीव हुआ PO2। फिर नेक्स्ट 3 सेट किया था, 2.68 अचीव हुआ PO3। नेक्स्ट 2.6 सेट किया था, 1.6 अचीव हुआ, मतलब कम अचीव हुआ। नेक्स्ट टाइम आई हैव टू गो हायर लेवल, अगली बार हायर आना चाहिए। नेक्स्ट, अब यहाँ पे 1 सेट किया था, अब यहाँ पे 1.08, अब यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, ज्यादा आ रहा है ना? आप बोलेंगे 1 सेट किया था 1.08 क्यों ज्यादा आ गया, क्योंकि ये एग्जैक्ट नहीं किया गया था। अगर 66% 33% एग्जैक्ट किया होता ना तो थोड़ा वैल्यूज बराबर आता, ये ध्यान रखना है। तो ये 66% होना चाहिए, 33%, तो ये बराबर लेसर जो है वैल्यू आती, 9.8 आता, 0.98, सॉरी 1 सेट किया है 0.98 आता। इस तरीके से वी कैन मैप सीओपीओ मैपिंग, ये इस तरीके से सीओपीओ मैपिंग होती है। ये डायरेक्ट हो गया, फिर इसी तरीके से वी कैन मैप फॉर इनडायरेक्ट ऑल्सो, और फिर इनडायरेक्ट मैप कर लिया, डायरेक्ट हो गया, तो डायरेक्ट का 80%, इनडायरेक्ट का 20%, ऐसे ले सकते हो, तो दोनों को मर्ज कर सकते हो 80-20 में, इन दिस वे, ओके। ये है प्रॉपर वे में, वी कैन से वन मेथोडोलॉजी है, इस तरीके से सीओपीओ मैपिंग जो है पूरा वी कैन डू इट फॉर एनबीए पर्पस। एनी क्वेश्चन, कोई चीज अगर नहीं समझ में आई हो, यू कैन आस्क इट, एनीवन। कोई टॉपिक, कोई पार्ट, अगर कोई क्वेश्चन है। okay. Yes, all the participants are requested to ask any queries regarding attainment calculation. If you have any problem,
you can ask it. Okay. Sir has nicely explained in a very simple language so that everyone can understand it properly. If you have any doubt, so that we can discuss it and we'll try to clear it out. This is one of the method for calculating CU and PO attainment. There are different types of methods, but what we find that this method is the very simplest and faculty can understand it in a very easy manner. Over to you, Muslim sir. Okay. If anybody has any doubt, because we can do it by average base also, and this is threshold base, or anything else method can be used for calculating this attainment also. There are 3 to 4 methods are there total which we can calculate it. Okay. Okay, sir. Okay, Shine madam, over to you. Yes, sir. So I hope all the participants must have gained the explanation, the knowledge sir has explained to us about the attainment calculation. Thank you so much, sir. That was really Okay. helpful for the Thank you, ma'am. NBA purpose. So with Okay. this, we end with the session, today's session. We will share the link for day 3, that is tomorrow's session, with Karandikar sir in the morning at 10 o'clock. So we will be sharing the link at 9:45. So kindly join the link tomorrow for our session, and the valedictory and the feedback will be shared tomorrow only. So see you all participants tomorrow morning. Thank you Okay. so much for joining. Thank you. Thank you.